Students, good morning. Today I'm here with new chapter. Name of chapter is How Do Organisms Reproduce. This is new chapter for you. How do organisms reproduce? It is 8th chapter. We will follow NCERT and you also follow the reference books so that you can clear from the deep. So first of all we have to know about the reproduction. What is reproduction? Because the name of chapter is how do organism reproduce. So firstly we have to know that what is reproduction. ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ reproduction, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ reproduction ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ reproduction ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. You also have to note that on the notebooks. Reproduction is the process by which all organisms multiply in numbers and increase their population. Reproduction ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ. ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ. ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨ ਨੰਬਰਸ. ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਫੰਗਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੇਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ. ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ NCERT ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ reproduction ਵੀ necessary ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ necessary ਨਹੀਂ ਹੈ. this is non necessary, we can survive without this reproduction. but ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਰਹੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ, then reproduction is necessary, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ. ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਐਂਡ ਮੇਨ ਰੋਲ. ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. 8.1 ਹੈ Do organisms create exact copies of themselves? Do organisms create exact copies of themselves? ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ. ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਡੌਗ ਹੈ, ਮੰਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਹਾਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ. ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੈਟ ਵਰਗਾ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਰਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਿਊਮਨ ਵਰਗਾ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਫ. ਸਨੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਨੇਕ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ. ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੂ ਸੋ. ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਫ ਬਾਈ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਕਿ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਨੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਕੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਨੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਨੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਨੇਕ, ਮੰਕੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਲੁੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਕੋਜ਼ देयर ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਮਿਲਰ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬਫੈਲੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਰੀ ਕੈਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ.
ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸਿਮਿਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਿਲਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is more important। ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਫॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। हाँ जी, अगर हुण उन्हां दा मतलब बॉडी डिजाइन सिमिलर आ, इसका कारण की आ कि उन्हां दे जिहड़े ब्लूप्रिंट्स हैगे आ, ब्लूप्रिंट्स फॉर देयर डिजाइन शुड बी सिमिलर, वो भी की होणगे सिमिलर। हुण सानूं ये नहीं पता ब्लूप्रिंट्स की हैगे आ, पहलां असीं कदे नहीं पढ़े हैगे 9th तक। तां ब्लूप्रिंट दा मतलब की है, जेनेटिक मटीरियल। ब्लूप्रिंट इन्हां ने किस नूं किहा है, जेनेटिक मटीरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट फॉर यू। इनू हुणे नोट कर लो कि ब्लूप्रिंट किनू कह रहे हैं, जेनेटिक मटीरियल। जाने कि जेनेटिक मटीरियल की हुंदा, डीएनए जां आरएनए, ज्यादातर की हुंदा साडे कोल डीएनए। इत्थे असीं की लिख लैने हैगे आ, डीएनए। हुण साडे कोल ह्यूमन बीइंग सारियां दा डीएनए की आ, डीएनए दे नंबर्स की हैगे आ, स्ट्रक्चर की हैगी आ, सेम आ। ठीक है ना, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ। ठीक है, बेसिक यूनिट की है, सैल है। सैल तो मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो असीं एक सैल की गल कर लैंदे आ। आ देखो आप इत्थे सैल ड्रॉ कर लिया एक, और सैल दे सेंटर दे विच बिल्कुल की हुंदा है, न्यूक्लियस। आ की है, न्यूक्लियस। साइड ते तुहानूं सारे ऑर्गेनेल्स पता है क्योंकि तुसीं ऑलरेडी 9th क्लास विच बड़ी डिटेल बड़ी सोहने तरीके नाल कीते होए ने। इत्थे चलो साइटोप्लाज्म भी आपां ड्रॉ करते हैं, बट जरूरत नहीं है, मैं जो समझाउणा वो गल न्यूक्लियस तक ही अपने कोल सीमित है। सो आपां गल किहदी कर रहे सी, ब्लूप्रिंट, कि सारे ऑर्गेनिज्म जिहड़े हैगे आ सिमिलर किवें आ, हॉर्स वर्गा, कैट वर्गी, है ना, ह्यूमन वर्गा क्यों आ, क्योंकि उन्हां दे ब्लूप्रिंट सिमिलर आ। सारे कैट्स दे ब्लूप्रिंट, सारे ह्यूमन दे ब्लूप्रिंट, सारे डॉग्स दे ब्लूप्रिंट सेम आ। ब्लूप्रिंट मतलब कि उन्हां दा जेनेटिक मटीरियल। तां असीं हुण गल करिए जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल हुंदा ऑलवेज सैल दे किस च पिया हुंदा, न्यूक्लियस च। आ लो मैं ड्रॉ करता इत्थे डीएनए। डीएनए दे विच की हुंदे आ, किस तो मिल के बनदा, क्रोमोसोम। तुसी ये पैराग्राफ नूं अगर डिटेल दे विच करोगे बुक तो तुहानूं देखण नूं मिलेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਮ आई होएगी, एक क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि साडे कोल डीएनए दे विच की हुंदे हैगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए नूं बनाउंदे हैगे। अगर ह्यूमन बीइंग दी गल करिए तां ह्यूमन बीइंग दे विच 23 पेयर हुंदे आ। अगर सिंपल गल करिए तां किन्ने नंबर हुंदे आ इहदे, 46 नंबर हुंदे क्रोमोसोम दे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हम नैचुरल ही है कि सारे को ह्यूमन का जो डीएनए की स्ट्रक्चर हैगी आ वो सेम होएगी। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग नूं ही पैदा करेगी, क्रोमोसोम नंबर सेम होएगा, ह्यूमन बीइंग नूं ही पैदा करेगा। एक गल मैं तुहानूं होर दसदा बेटा, इस च ना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। तुसी कहो कि हर एक ह्यूमन का डीएनए दूसरे नाल डिफरेंट हुंदा, दिस इज ट्रू। किसी भी पर्सन का डीएनए किसी नाल मैच नहीं करता हैगा, लेकिन ब्लूप्रिंट किहनूं कह रहे हैं असीं कि सारे ह्यूमनस दा सेम हुंदा क्रोमोसोम नंबर उन्हां दे ਉਹ सेम ਹੁੰਦੇ ਆ। अगर ਅਸੀਂ डीप ਉਹਦੀ स्ट्रक्चर ਨੂੰ रीड ਕਰਨ ਜਾਵੀਏ ਅਸੀਂ डीएनए ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ डीएनए डिफरेंट ਆ। बट सारे ह्यूमन वर्गे क्यों आ, क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम के नंबर ते उन्होंने स्ट्रक्चर सेम है। समझ आई मेरी गल। लेकिन डीएनए की अगर डीप स्ट्रक्चर नूं असीं रीड करांगे, स्टडी करांगे, तो हर एक दे डीएनए छोटा मोटा छोटे लैवल ते वड्डे लैवल ते फर्क हैगा ही हैगा। आई होप कि तुहानूं मेरी गल समझ आ गई होएगी। सो ये तुहाडे कोल बेसिक सीगा मेन। दूसरी गल इहदे विच असीं होर देख लईए। हुण देखो, अगर साडे कोल रिप्रोडक्शन हो रही हैगी आ, तो नैचुरल या रिप्रोडक्शन जिहड़ी हैगी आ कुछ ना कुछ वेरिएशनस जरूर लेके आएगी। ठीक है, तो इदां ही तुहाडे कोल नैक्सट एक पैराग्राफ हैगा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तुहाडी बुक ते ही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन।
ਹੁਣ सब तो पहली गल तो यह है कि वेरीएशन हुंदा की आ, वेरीएशन का मतलब हुंदा बदलाव, चेंज आना। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म आ उहदा होर ऑर्गेनिज्म आदि ऑर्गेनिज्म नालों कोई चेंज आ रहा तो वह क्यों आ रहा, कि वह बेनीफिशियल है या नहीं बेनीफिशियल, वो असीं देखना है। ठीक है, सब तो पहली गल तो वेरीएशन नाल की हुंदा कि सारे ऑर्गेनिज्म स्टैटिक नहीं रहिंदे, कि बिल्कुल पिछले बहुत सालों तो जिवें सी अगे ही आउणगे। ठीक है, असीं की कहांगे, बिकॉज ऑफ वेरीएशन स्पीशीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक। लिखो, बिकॉज of variations species do not remain static। स्टैटिक का मतलब हुंदा जिहड़ी चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ये वो नहीं रहणगे। सगां दी वेरीएशन नाल की होएगा कि ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज कर सकणगे, जिहड़ा कि जरूरी भी है। मान लो कि पहला बहुत ठंड सी अर्थ के उपर, तो ऑर्गेनिजम्स उदा का अपने आप को अडैप्ट करके उन्होंने रखा सी। हौली हौली पॉल्यूशन बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, तो अगर वो ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडैप्ट नहीं किया उस चेंज हो रहा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने आप को वेरीएशनस अपने शो नहीं किए, चेंज शो नहीं किए, तो उन्होंने डेथ हो जाएगी। अगर वेरीएशनस उन्होंने अपने ले आंदियां तो जिमें जिमें एनवायरनमेंट चेंज होएगा उवें उवें अपने आप को सर्वाइव करवा लेंगे। इसलिए आप लाइन की लिखिया, बिकॉज ऑफ वेरिएशन स्पीशीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक। इन्हें स्टैटिक नहीं रहते, मतलब कि वो चेंज होंदे रहंदे आ। ठीक है, उसके अलावा की कह सकते हैं असीं कि जिहड़े ऑर्गेनिजम्स हैगे अपने आप को हौली हौली मॉडिफाई कर दिंदे हैगे आ। की लिख सकते हैगे आ, इंस्टेड दैट विद वेरिएशंस organisms modified themselves according to environment conditions। environmental conditions आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होगा। देखो जिद्दां मैं तुहानूं दसदी हां, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ एप्स तो बने हुए हैं, ह्यूमन बीइंग पहला की सीगा, एप सी। हौली हौली इन्वायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ चेंजेस आਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ डिमांड्स ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ठीक है, नीड्स ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। हौली हौली एप ने अपने आप को की ਕੀਤਾ, मॉडिफाइड ਇੱਥੇ मैं वर्ड यूज ਕੀਤਾ, मतलब भी चेंज ਹੁੰਦਾ है। चेंज ਕੀਤਾ ਤੇ हौली हौली चेंज ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अगर साइंस सिटी गए हो कपूरथला ਦਾ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ एप ਸੀ, ਸਾਡੀ शेप ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, हौली हौली करके ਅਸੀਂ स्टैटिक नहीं रहे, चेंज होने लग गए ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ बन गए, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जी नीड साड़ी सीगी वो फुलफिल्स, मतलब टोटली हो गया जो असीं की बन गए, ह्यूमन बीइंग। तो इट मीनस कि जिमें जिमें इन्वायरमेंट चेंज होंदा है उसके अकॉर्डिंगली वेरीएशन आनी, चेंज आनी बहुत इंपॉर्टेंट आ। और जिथे वेरीएशन आएगी उत्ते तुसीं याद रखना, एक वर्ड पक्का आएगा, इन्हूं भुलना नहीं है। तुसीं जो आ चीज़ मैं दसन लगी है इन्हूं असीं बोलते हैं एवोल्यूशन। अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जांदा वाई वेरीएशन इन नसैसरी, आ चीज़ां लिखण दे नाल नाल तुसीं की लिखोगे, क्योंकि वेरीएशन की लैके आंदा है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब की हुंदा विकास, एवोल्यूशन का मतलब की हैगा विकास। तो तुसीं इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना है कि जिमें जिमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर रहा, मॉडिफाई कर रहा, इट मीनस के उन्हां च विकास आ गया। क्योंकि पहला वो डाउन लैवल ते सी, उन्हां दे विच उन्नियां नीड्स नूं फुलफिल करन दी कैपेसिटी नहीं सीगी, हुण अपने आप उन्होंने चेंज करता, यानी कि अडैप्ट कर लिया, यानी कि सर्वाइव ज़्यादा करनगे, इट मीनस कि उन्हां च की आ गया, एवोल्यूशन आ गया। आई होप कि तुहानूं चीज़ क्लीयर हो गई होएगी। मतलब जिथे कोई चेंज आउंदा है तो इट मीनस कि वो गुडली आउंदा है। मान लो मैं तुहानूं नॉन लिविंग की अगर एग्जाम्पल देवां, 2 विलेजेस आ साडे कोल। ठीक है, एक विलेज इदां दा जिहदे वल असीं बिल्कुल ध्यान नहीं दिता होया। ठीक है, और उदां ही सारे उत्थे पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, हर एक टाइप का लोग। एक विलेज नूं असीं क्या है कि इहनूं असीं इंप्रूव करना है, उत्थे सारी सफाई की, सारे विलेज नूं असीं पेंट करता वधिया तरीके नाल। ठीक है, जिते जिते सानूं लगदा है पानी खड़ा है, जां नालियां नहीं बनिया हुई, जां जिते भी गलियां दे विच कच्चियां गलियां, सारियां चीज़ां असीं इंप्रूव करतियां वधिया तरीके नाल। तो दूसरा पिंड की बन गया, जान कि बहुत ही मॉडल पिंड बन गया। एक मॉडल पिंड बन गया, इट मीनस कि उहदे च की लिआंदी सी असीं वेरीएशन, इट मीनस कि पिंड दा हुण की होएगा, विकास। एवोल्यूशन मतलब विकास। उदा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने एवोल्यूशन लैके आते हैं, सॉरी वेरीएशन लैके आते, इट मीनस कि उन्होंने की हो रहा होंगे, एवोल्यूशन विकास हो रहा होंगे। आई होप कि तुसीं ये कदे हुण भुल्लोगे नहीं। ठीक है, आ चीज़ तुहाडे लई सी। तो इस तो इलावा एक क्वेश्चन आ तुहाडे कोल, नैक्सट तुसीं देख लो अपनी बुक ते, मैं दसदी हां तुहानूं
क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। हाँ जी, डीएनए कॉपी जिहड़ा हैगा क्यों हुंदा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब तो तुहानूं समझ ही आ गया है कि जदों पॉपूलेशन का नंबर इनक्रीज हुंदा है, नवे बच्चों का जन्म हुंदा है, उन्होंने कह दिता जाता है। तो इहदे दौरान कहते डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है। डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है। डीएनए कॉपिंग ता जरूरी है क्योंकि अगर डीएनए तो डीएनए बनेगा, अगर डीएनए तो एक होर डीएनए बनेगा ताही तो वो डीएनए पेरेंट का जाने क्या डीएनए किहदा सी पेरेंट का, और आ डीएनए किहदे विच जाएगा बन के ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बच्चा हुंदा है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा हुंदा है। एक डीएनए दा कॉपी होना क्यों जरूरी है तुहाडा क्वेश्चन आ, क्वेश्चन की डिमांड आ कि इहदा आंसर असीं की देना कि डीएनए तो अगर डीएनए बनेगा तो पेरेंट तो की जाएगा ऑफस्प्रिंग। इहदे लिख भी लो प्रोसैस का नाम कि डीएनए तो डीएनए बनने नूं बोलदे रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन समझ आई मेरी गल। तो यही असीं लिखना हैगा कि डीएनए तो डीएनए बनेगा तो पेरेंट तो कित्थे जाएगा ऑफस्प्रिंग दे विच। और इहदे नाल असीं होर की कह सकते हैं कि रेप्लीकेशन के दौरान होर की आ जाता हैगा वेरीएशनस भी आ जांदियां ऑर्गेनिजम्स दे विच। वेरीएशन ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग नहीं पैदा होएगा, एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग ही पैदा होएगा, लेकिन जो सम चेंजेस आउंदियां क्योंकि हर एक का फेस इक्को जा नहीं हैगा, हर एक दे जो फीचर्स इक्को जे नहीं हैगे, तो कुछ एक्सटेंट तक वेरीएशनस भी आउंदियां हैगियां। असीं सारे ऑर्गेनिजम दे फेसिस साडे डिफरेंट है एक दूसरे नालों, क्यों क्योंकि जो डीएनए तो कॉपी हो रहा सी उसके दौरान थोड़ी बहुत उस की आ गई चेंज आ गई, ਉਹਦੇ क्रोमोसोम्स नहीं बदले हैगे, ह्यूमन तो ह्यूमन रहा लेकिन ਉਹਦੇ फीचर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ चेंज आ गई ड्यू टू सम एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन व्हेन डीएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ਜਿਹੜਾ पास होना हैगा ये। ठीक है, ये सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी चेक। हाँ जी, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द स्पीशीज। हाँ जी, वो कहते वेरीएशनस आ जड़ियाँ वो बेनीफिशियल आ स्पीशीज लिए, पर जरूरी नहीं क्यों होण, ये नैसेसिटी नहीं हैगी चीज़ क्यों होण, नैचुरली है। अगर वेरीएशनस नहीं होणगियां तां भी कोई वड्डी गल नहीं है। अगर मैं तुहानूं पहले एग्जाम्पल दी कोई पिंड आ वो गंदा है गंदा रहेगा तो कोई गल नहीं, सर्वाइव तो करी जाते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा बन जाता है तो वह विकास हो जाता है। ठीक है, तो नैचुरली आ भी एग्जैक्टली कि वेरीएशनस जिहड़ियां हैगियां नैसेसिटी नहीं हैगियां, लेकिन वेरीएशनस के नाल की आउंदा है एवोल्यूशन जिहड़ा कि लिविंग से विच बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट हुंदा और उहदे नाल सर्वाइवल रेट बैटर हो जाता है, जानी कि ज़्यादा सर्वाइव ते वधिया तरीके नाल सर्वाइव कर जाते ऑर्गेनिजम। इसे करके असीं कह सकते हैं कि वेरीएशन नैसेसरी नहीं है बट गुड आ अगर हो रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, आई होप कि तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा और इस चैप्टर में बड़े चंगे तरीके नाल तुसीं डिटेल्स अपने आप करते भी जाना, रेफरेंसिस बुक्स नूं फॉलो कर लो और कितने भी कोई डाउट आता तुसीं मैनूं पूछ लो। फटाफट लाइक दा बटन भी प्रेस कर दो, शेयर करो वीडियो नूं, मैं तुहानूं ऑलवेज कहनी है ताकि होर बच्चे भी फायदा लै सकन। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे दे कमेंट आउंदे, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। तुसीं बड़े वधिया तरीके नाल फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है। सो बैठ के तुसीं घर की करना है कि तुहाडे कोल फ्री टाइम बहुत ज़्यादा हैगा, फटाफट मॉर्निंग उठ के तुसीं सारे काम करके, मॉर्निंग का टाइम बड़ा अच्छा हुंदा है, तुसीं कोशिश करा करो कि 9 o'clock के करीब अगर फ्री होने, पहला फ्री होने तो बहुत अच्छी गल आ, 9 o'clock के करीब फ्री होके तुसीं अपनी बुक्स चक लिया करो तो फटाफट तुसीं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, जो आप करते हैं अज किया है तुहानूं हले इवनिंग तक वीडियो मिलेगी, तुसीं वो भी कर सकते हो, जां तुसीं उहदी डिटेल रेफरेंसिस बुक्स तो जो देखनी है जां कोई होर सबजैक्ट, लेकिन तुसीं ये देखना है कि तुसीं 9 o'clock बैठ जाओ अपना पढ़न। ठीक है, उदा ही समझो जिद्दां स्कूल जाते हो, स्कूल का इस तो पहले ही जाना सीगा। ठीक है, ये नहीं कि सारे कोल टाइम नहीं या नहीं उठे तुहाडे बहाने आ, और बहाने तो लांबे मैं तुहानूं पहलां भी कहनी हुंदी जिंदगी पिछे लै जांदे आ। तुसीं की करना कि मॉर्निंग उठ के फटाफट अपना सारा काम कंप्लीट करके 9 o'clock के करीब तुसीं अपना बैठ जाना है पढ़न लई, ताकि तुसीं मैक्सीमम बेनिफिट अचीव कर लो इस लॉकडाउन के दौरान। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लैस यू।